Hello, everyone, and welcome back to Tradomaniac. Ah, what a journey it has been so far. Okay, all right. So I'll just get right into it. This is going to be a very honest life. There may be zero viewers right now, and that is completely fine. I'm doing this, to document my trading journey, how I came here, where I started, how much time I've been trading in. This is not to show profits. I don't want to show off my profits. If I wanted to do that, I could have just like other YouTubers. I don't blame or I do not want to call out any YouTubers, but I see most of the people just sharing the great things about trading and profits and all that. I could have just done that instead of showing my entire PNL and my live trades and giving updates. I would not have done that. If if my goal was just to get viewers and to maybe sell a course. That is not the reason why I'm going live. Reason why I am going live is there is an important milestone that I've reached. It may be a very minor one, but for me it is a big one. It makes sense. It matters to share this and um, consider this moment as a milestone because after 3.5 or 4 months of rigorous uh, trading, before that paper trading, learning, doing courses and whatnot. After all of that, for such a long time, I know it may not be a very long time for everyone, but for me it was because I had a different thing in mind. So I'm not here to show off profits. I'm just here to document my trading journey for you guys and also use this as a training trading journal or a reminder for my own future self. All right. Um, so आप लोग को सबको पता होगा जो मेरे वीडियोस पहले देख चुके हैं कि I started options trading in September. पहला महीना मेरा लॉस मेकिंग मंथ था. सॉरी, फर्स्ट मंथ वाज आई थिंक अ लिटिल प्रॉफिटेबल. उसके बाद देन आई made some losses. देन अक्टूबर में और थिंग्स अक्टूबर और नवंबर में थोड़ा सा रिकवरी मैंने किया. आई थिंक अक्टूबर में आई वाज 20,000 प्लस. देन देयर वाज अ वन बिग गैप डाउन. लाइक आई टोल्ड यू गाइस इसके पहले की वीडियो में भी कि बजाज से मेरी जमती नहीं है शायद. तो बजाज ऑटो में सॉरी एंड बजाज फाइनेंस में मिला के करीबन 30-40 हज़ार का मेरा लॉस हुआ. ओवरऑल वो लॉस चला गया -50,000 तक बाय द एंड ऑफ नवंबर और दिसंबर आई थिंक. अगेन थोड़ा सा मैंने रिकवरी किया उसमें से 10-15-20 हज़ार रिकवर किया, फिर से 52,000 तक पहुंच गया था. आई वॉज वेरी disheartened. I could see people making profits. Even youngsters, I mean, I am still young. I am still young, but what I'm trying to say is people in schools and colleges, I see them making profits, man. It was it was motivating, but also disheartening at the same time. Kids these days, they are so smart. They are making profits. They are trading. They know more than me, probably. But I wasn't there. Anyway, so I kept uh, grinding. I kept taking trades. मैं अपने strategies को follow करता रहा. सब कुछ जो मुझे करना चाहिए था, आई थिंक मैं करता रहा. एंड फाइनली द डे केम yesterday. I almost became profitable. एक 1,000-2,000 रुपए से खाली मेरा वो रह गया था. बट टुडे मॉर्निंग आई फाइनली became profitable again. Nothing is forever, I think. Okay, so for now I would say that became profitable again. So it is an achievement for me. um I've been sharing कि मैंने क्या किया था, how I reached here and all that. बट थोड़ा सा मैं और बताऊंगा फिर से एकदम शॉर्ट में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल,
For those who are new traders, if you have been making mistakes, okay. So mistake is probably not your strategy, it is probably your psychology. Fix that and you will win. I assure you. Yeah. Uh, Sometimes the mistake is also your environment and your execution. The strategy may be correct. Your biasness of whether the price in whichever instrument you are trading is going to go up or down. Your biasness may be right, but if your entry and exit are incorrect, no matter how much you uh, have confidence in your strategy and how much it works, doesn't matter if your entry and exit is. I had, like I said about environment, I had been trading while traveling also. Never do that. Never do that. For two reasons. First of all, you are on you're traveling, you're on a trip, you're with your family or your friends or whoever. You are there with them to enjoy the trip. So just enjoy the trip. Why do you want to take your trades there? Don't do that. First thing. Second thing is, even if you do that, it's only going to spoil your mood further because you are you have a higher probability of making the wrong decisions, taking the wrong trades because you are not in the right environment. Stick to one environment, stick to the place where you take trades, be consistent there. That is my advice to new traders. I wish someone had told that to me. Maybe I knew it, but I was too adamant to uh, accept that. I was like, क्या हो गया कर लूंगा मैं कर but does not really help. It may help once you are very experienced, but you are starting out new, or you're just few months or a couple of years into the journey, into your trading journey. Avoid that. Okay. Um, that was that. Then, so, like I said, so knowing a strategy and executing it consistently are two completely different things, right? So what changed? What changed was I um, stopped, trading when I was traveling. I came back to my desk and I only traded from my desk, nowhere else. I reduced the number of trades. You guys must have seen कि अगर मेरा 40,000 का लॉस हुआ था जीरोधा पे इन स्टॉक्स एंड इंडाइसेस, तो उसमें से करीबन ऑलमोस्ट सारा 40,000 वो सब ब्रोकरेज और चार्जेस वगैरह में चला गया। जबकि मेरा एक्चुअल पीएनएल में देखो तो 100 रुपये कुछ में प्लस आ गई। बट एनीवे, so that's the thing. So I reduced the number of trades. Then I focused on execution और recovery. ये सोच के नहीं मैं ट्रेड लेता था कि अरे इतने पैसे चले गए हैं, मेरे को इतने इतना रिकवर करना है। नहीं, गया वो गया। आज मुझे कितना कमाना है, कल मुझे कितना कमाना है, रोज़ का मेरा टारगेट होता था। और वैसा भी नहीं कि उस टारगेट के पीछे मैं भाग रहा हूँ। ये मेरा टारगेट है, तो इसका मतलब अगर मेरा टारगेट है कि दिन का मुझे 2,000 या 5,000 या 3,000 या 10,000, व्हाटएवर अमाउंट you have decided. First of all, is it realistic based on your capital and your trades, the kind of trades you take? दूसरा, अ, अगर आपको उतना प्रॉफिट बनाना है, तो आपको पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा आपको एंट्री और एग्ज़िट कहाँ लेना है, कितना आपको रेंज चाहिए। ऑलरेडी कोई स्टॉक अगर 3% ऊपर चला गया है और आपको 2,000 प्रॉफिट करने के लिए चाहिए कि वो स्टॉक 2% और ऊपर जाए, तो आप वहाँ पर ट्रेड नहीं लोगे। बिकॉज़ वो 3% ऊपर चला गया है, उसको आपको 2,000 उसमें से कमाने के लिए उस स्टॉक के प्राइस को 5% बढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो हर बार ऐसा होता नहीं है, उसका चांसेस कम होता है, नो डाउट होता है, पर उसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम है। 1% से 3% पे जाने का प्रोबेबिलिटी हायर है। 0.5% से 2.5 जाने का हाई प्रोबेबिलिटी हायर है। माइनस 0.5 या -1 या -2 से भी 0 पे या 1 पे आने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, इफ इट इज़ फ्रॉम रिबाउंडिंग फ्रॉम अ सपोर्ट लेवल। तो आपको आपका क्या टारगेट है आपको डिफाइन करना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंग टू दैट you will have to plan your entry and exit. Very important. So I reduced the number of trades. I focused on execution, not recovery. I also learned to accept losses. पहले मैं losses hold करता था कि 2,000 लॉस हुआ है, मेरा टारगेट है 1,500 या 2,000 लॉस हुआ तो बुक कर देने का, लॉस तो लॉस, प्रॉफिट तो प्रॉफिट।
लेकिन मैं नहीं करता था, मैं सोचता था अरे यार मेरा बायस तो सही है, यहाँ पर थोड़ा और नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, थोड़ा नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा। और वो होता भी था, लेकिन वो उस लेवल तक मेरा लॉस बढ़ जाता था, बिकॉज़ मेरा एंट्री गलत था। तो मेरा लॉस हो जाता 3,000 4,000 कभी 9,000, और जैसे ही मैं बुक करता लॉस, उसके बाद फटाक से प्राइस ऊपर। क्योंकि वो जाना था, ये मुझे भी पता था कि जाना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ैक्टली जिस पॉइंट से आपने रिवर्सल या रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट किया हो, वहीं से वो आएगा, थोड़ा नीचे भी हो सकता है। तो यू हैव टू बी रेडी। ओवरऑल अगर ट्रेंड पॉज़िटिव है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि वो ट्रेंड उसी ट्रेंड में कंटिन्यू होगा, मतलब व्हेन यू आर टेकिंग योर ट्रेड, ओके, अनलेस वो पूरा ट्रेंड ही नेगेटिव चेंज हो जाता है, तब तक यू हैव टू जस्ट प्लान योर एंट्री एंड एग्जिट बेटर। वो मैंने किया नहीं था। मेरा मैं लॉसेस होल्ड करता था, प्रॉफ़िट्स को जल्दी-जल्दी बुक कर देता था। कभी-कभी ज़्यादा प्रॉफ़िट के चक्कर में भी लॉस हुए। 3,000 प्रॉफ़िट दिखाए, मैंने सोचा कि यार 4,000, 5,000, 6,000 दिखेगा प्रॉफ़िट, तो बुक करूँगा, और मैंने बुक कर दिया माइनस 2,000 या माइनस 1,500 या ₹1,000 या 2,000 कम, मतलब बेसिकली। रीज़न बीइंग सेम, आई डिड नॉट एक्सेप्ट माय लॉसेस, लाइक आई केप्ट फाइटिंग देम, एंड प्रॉफ़िट भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करता था। ठीक है, प्रॉफ़िट ज़्यादा एक्सपेक्ट करना इज़ फाइन, बट उसमें भी एक स्टॉप लॉस आपको सेट करना चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, कि अभी अगर 3,000 प्रॉफ़िट हुआ है, अगर वो 1,000 तक आ गया नीचे, तो मैं बुक कर दूँगा। तो फिर 5,000 तक गया तो मैं बुक करूँगा। 5,000 पहुँचा तो यू कैन से कि ठीक है, अभी 3,000 तक वापस अगर नीचे आया तो मैं बुक कर दूँगा, या फिर ऊपर 7,000 तक गया तो मैं बुक कर दूँगा। वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा। दैट इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। अ, कैपिटल प्रोटेक्शन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ज़्यादातर लोग लॉस करते हैं क्योंकि वो लोग अपना कैपिटल उड़ा देते हैं, या इतना वो लॉस कर देते हैं कि वो लोग डर के मारे छोड़ देते हैं। आपको वो नहीं करना, हमें वो नहीं करना। हम लोग को कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। इट्स लाइक आई डोंट नो इफ यू गाइस प्ले क्रिकेट। मैं तो खेलता हूँ, क्रिकेट बहुत खेलता हूँ, तो आई कैन रिलेट टू दैट एग्जांपल। अगर आप लोग क्रिकेट खेलते हो, आपने सुना रहेगा, आई डोंट नो अगर आपने सुना भी रहेगा तो, बट नहीं सुना तो मैं बताता हूँ। समझो टारगेट बड़ा है, आप सेकंड बैटिंग कर रहे हो, टारगेट थोड़ा बड़ा है, और आप पे प्रेशर बहुत है। अ, हाँ, सॉरी, समझो आपके ऊपर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। क्या बोल रहा हूँ यार, सॉरी, आई वाज लुकिंग एट ट्रेड। तो अगर आपका टारगेट, सेकंड बैटिंग कर रहे हो, टारगेट बहुत बड़ा है, तो जाके सीधा मारना शुरू नहीं कर दोगे। आपको, या फिर मतलब मारोगे भी ठीक है, बट आपको क्या बोला जाएगा? तो कैप्टन आपको क्या बोलेगा, आपका कोच आपको क्या बोलेगा कि बेटा सिर्फ़ पिच पे टिका रहे, रन्स अपने आप आएँगे। और ये पहले मैं सोचता था कि ये क्या बकवास है। भाई बड़ा टारगेट है, जाके मारो, लेकिन तुम्हारे पास 10 विकेट ही है। 10 विकेट्स हो गए तो खत्म हो गई गेम। लेकिन अगर विकेट्स बची हुई है, अगर आप अपने पिच पे टिके हुए हो, तो उससे होता है क्या? आपको मौके मिलेंगे। अगर आपने 2-4 बॉल खेला ज़ोर से, या 10 बॉल खेला ज़ोर से, मार के आप आउट हो गए, चलेगा, कोई बात नहीं, आपने 2 10-20 रन मार दिए, लेकिन विकेट चली गई। उसी जगह पे अगर आप टिके रहे, आपने 8-10 बॉल कुछ नहीं किए, लेकिन आपको किसी को लगेगा ये तो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन आप एक्चुअली में कुछ कर रहे हो, वो है आप सीख रहे हो। बॉलिंग जो कर रहा है, जो बॉलर बॉल कर रहा है, आप उसको रीड कर रहे हो। आप अपना स्टांस है, कंपोज़र है, अपना जो भी पोस्चर है, आपका जो जिस जगह पे आप खड़े हो, आप अपनी जगह वहाँ बना रहे हो, आप टिक रहे हो वहाँ पर। आप टिक रहे हो तो सामने वाले पे भी प्रेशर बनता है और आपका प्रेशर रिलीज़ होता है, ठीक है? आपको गेम समझ में आता है कि कहाँ पर बॉल, कहाँ टप्पा गिर के कैसे आ रही है, बॉलर का माइंडसेट क्या है, वो लोग क्या किस तरीके की बॉलिंग डाल रहे हैं। अ, धीरे-धीरे आपको कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। आपको जो छोटा-सा बॉल है ना, कि इसको हम लोग बोलते हैं कि भाई इसने तो इतने वो तो इतना टिक चुका है अभी, उसको तो बॉल अभी फुटबॉल दिख रहा है। वो एक्चुअली में होता है, आपको बॉल बड़ा दिखता है। बॉल बड़ा दिखता है तो आपको मारने में आसानी होती है। आप कभी नोटिस करना, आप कभी ट्राई करना, इफ यू हैव हिट ऑन द पिच, अगर आपने थोड़े बहुत बॉल्स खेल लिए, थोड़े बहुत रन्स मार दिए, ऑटोमैटिकली आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप और मारते हो। बहुत बढ़िया बैटिंग करोगे आप। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़। तो प्रोटेक्ट योर कैपिटल।
Don't just run behind profits. Profits आएंगे, but protect your capital. That is very important. So I learned that, and learned respecting my own goals uh, and my own rules. जो पहले मैं नहीं करता था. I started accepting them. Right. So that is it. So I'll end that with मतलब अभी ट्रेड्स की बात करेंगे हम लोग, और अभी करंटली क्या स्टेटस है, I'll talk about that too. But about this story, so just I would like to end with this. The No, I did not become profitable again by finding a new strategy. Okay, I became profitable by only, I won't even say stopping, but reducing my mistake. जितनी गलतियां मैं पहले करता था, अभी भी गलतियां करता हूँ, but उसे कम कर दूँ. So I'm not claiming that I mastered trading. I'm not claiming losses won't happen again. I'm not saying my process is back on track. अभी भी गलतियां करता हूँ, अभी भी गलत एंट्रीज लेता हूँ. Those who have been watching my videos, they know I have been doing that. Uh, but the number of mistakes have reduced. That is more important. And like I said, so the profit आएगा. Profit is a byproduct of your discipline. आप disciplined रहोगे और consistently खड़े रहोगे, आपको profit आएगा. जो चेंज होगा वो है आपको माइंडसेट, आपका एंट्री एग्जिट, आपका एग्जीक्यूशन. स्ट्रैटेजी आप दुनिया की कोई भी पकड़ लो, ज़्यादातर स्ट्रैटेजीज में आपको प्रॉफिट ही होगा. ये मैंने खुद देखा है, सुना है. इतनी सारी स्ट्रैटेजीज है. कोई स्ट्रैटेजी अगर बनाता है, शेयर करता है, तो लॉस मेकिंग होगा तो शेयर करेगा ही नहीं. वो प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज ही होती है मोस्टली, बट हम एग्जीक्यूट कैसे करते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है. एनीवे, सो अगेन, बीइंग प्रॉफिटेबल अगेन doesn't mean that the journey is over. It just means that I'm walking in the right direction again. And I have had help from commodities, स्टॉक्स में, बिकॉज इक्विटी मार्केट बहुत ही बुरा पिट रहा था. अभी भी देखो, आज ये वॉलेटिलिटी देखो, निफ्टी में देखो, ऊपर नीचे, कुछ कोई डायरेक्शन नहीं है, कहीं भी जा रहा है. आपको लगेगा यहाँ ऊपर जा रहा है, धपक से गिर गया. आपको लगेगा यहाँ ऊपर जा रहा है, धपक से गिर गया. आपको यहाँ लगेगा कि नीचे जा रहा है, फिर से उठ गया. तो वॉलेटिलिटी बहुत है, और वो रहेगा. काफ़ी टाइम तक रहने वाला है ऐसा. स्पेशली मतलब कुछ टारगेट्स है, जैसे कि निफ्टी अगर 25,600 के ऊपर चला जाता है, उसका भी बायसनेस का रीज़न क्या है, विल टॉक अबाउट दैट इन सम अदर वीडियो इफ यू वांट. तो 25,600 700 के ऊपर चला जाता है, या फिर 2600 के ऊपर चला जाता है, तो ऐसे जब जो टारगेट्स है अगर मीट होते हैं, तब जाके एक बुलिश रैली कंटिन्यू हो रही है, ऐसा तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, मतलब वो चांस ले सकते हैं. ओके. एनीवे, सो that is it about my journey so far and how I became profitable again. uh, this is, you know, more than you guys, I would say that this is a journal for my future self, ताकि मैं जब आगे प्रॉफिटेबल और बन जाऊँ, या ना बनूँ, या कभी मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है, वट एवर, आई कैन कम बैक, या फिर मुझे कभी ये देखना है कि मेरी जर्नी कैसी थी, हाउ आई स्टार्टेड, तो ये वीडियोस मुझे हेल्प करेंगी. इट्स मोर ऑफ ट्रेडिंग जर्नल फॉर माई सेल्फ ऑल्सो, एंड आई होप इट हेल्प्स यू गाइज टू, स्पेशली न्यू ट्रेडर्स. एंड इफ़ यू गाइज हैव एनीथिंग फॉर मी, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, स्ट्रैटेजीज आर रॉन्ग, और जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत है, या any kind of learnings that you have for me, please feel free to share your thoughts in the comment section, and I will promise I will look at them. अभी इतने सारे तो मेरे सब्सक्राइबर्स हो नहीं गए, होंगे, लेकिन अभी तक इतने हुए नहीं है कि मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ. आई विल रिप्लाई टू ईच वन. ओके. So if you're watching this uh, later, and if you are in a drawdown, please know that you are not broken. Okay? You are not a loser. Just step back, fix your execution, fix your environment, give yourself some time, stand strong. Okay? Do not panic. Just keep doing what you do consistently. Fix your mistakes, but don't stop. Try not to repeat the same mistakes. Um, and trust me, you will do good.
ठीक है, ये मार्केट का एक रूल है और एक प्रोसेस है। शुरुआत में आपको लॉसेस होंगे। आपको कितनी भी कोई स्ट्रैटेजी सिखा दे, कितना भी कुछ सिखा दे कोई, उससे काम नहीं बनेगा। आपको खुद लॉस करना पड़ेगा, खुद आप, बिकॉज़ हियर द प्रॉब्लम और द इश्यू इज़ नॉट स्ट्रैटेजीज़। स्ट्रैटेजीज़ एज़ आई सेड, कोई भी स्ट्रैटेजी चल जाएगी। प्रॉब्लम इज़ एग्ज़ीक्यूशन, प्रॉब्लम इज़ साइकोलॉजी, माइंडसेट। वो आपको कोई सिखा नहीं सकता। एग्ज़ीक्यूशन में सिखा देगा कि यहाँ पर एंट्री लेना है, यहाँ पर एग्ज़िट। और जब आप एक्चुअली अपने पैसे डालोगे मार्केट में, और खुद का हार्ड अर्न्ड मनी आप जब डालोगे, तब आपको समझ में आएगा कि वो प्रेशर क्या होता है। पेपर ट्रेडिंग में अगर आप आज शुरू कर दो, सेम स्ट्रैटेजी सब कुछ, आप पेपर ट्रेडिंग शुरू कर दो, आपको प्रॉफ़िट ही होना है। मैं लिख के देता हूँ, आपको प्रॉफ़िट होगा। शुरुआत में नहीं होगा, लेकिन आगे प्रॉफ़िट ही होगा। जब लेकिन आपने खुद का पैसा डाला, शुरू होगा। कि शुरुआत में लॉस शुरू होगा होगा, वो होता है। दैट इज़ दिस हाउ इट गोज़। ये मार्केट का थोड़ा रूल है। लाइक मुझे किसी ने बोला था, मैंने सुना हुआ था कि इट्स लाइक आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हो, उसके पहले आप चंदा दे रहे हो, आप डोनेशन दे रहे हो, तो मार्केट को आप डोनेशन दे रहे हो, वो होने वाला है। उससे डरो मत। बट व्हाट यू कैन डू इज़, शुरुआत में यू कैन यूज़ लिटिल कैपिटल, ताकि आपका जो लॉस वॉस हो वो कम हो। अगेन एकदम भी कम अगर लॉस हुआ, अगर 200-500 रुपए, 300 रुपए, तो उसमें आपको इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। थोड़ा-सा उतना प्रॉफ़िट उतना होना चाहिए वो, आपका कैपिटल जो आपने इन्वेस्ट किया है और आपका रिस्क रिवॉर्ड, कि आपको थोड़ा-सा तो झटका लगे। अगर मैं महीने का लाख रुपए कमाता हूँ, कि मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है, और अगर मैं ट्रेडिंग में आया और मैं ट्रेड जब लेता हूँ, मैक्सिमम लॉस मेरा होता है 100 रुपए, 200 रुपए, मैक्सिमम प्रॉफिट 500 रुपए। तो मेरे लिए इट इज़ एज़ गुड एज़ पेपर ट्रेडिंग। मेरे को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं 10 लॉस कर लूँगा तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो भी 1000 रुपए होते हैं, अगर 100 रुपए के हिसाब से 100 लॉस कर लूँ, 100 तो भी 10,000 रुपए। 1000 लॉस कर लूँगा तो भी मेरे 1 महीने की सैलरी जाएगी, तो उसमें इम्पैक्ट नहीं। थोड़ा-सा आप कैपिटल उस तरीके से डालिए कि प्रॉफिट और लॉस दोनों में आपको मज़ा आए। तब आपका थोड़ा साइकोलॉजी ठीक होगा। कि सीखने आपको तभी मिलेगा जब प्रेशर होगा। एनीवे, बहुत कुछ बात कर लिया। तो कमिंग टू आवर करंट स्टेटस, दोज़ हू हैव सीन द थंबनेल, आपको उसमें से समझ में आ गया रहेगा, बट आई विल शो दैट टू यू अगेन। आई थिंक मैंने कल की वीडियो में भी दिखाया था। अगेन आई विल शो इट यू वंस मोर। आज के भी ट्रेड्स मैंने क्या लिया, आई विल शो यू। आज तो थोड़ा अच्छा बुरा आई डोंट नो क्या बोलूँ मैं, थोड़ा स्कैरी भी सिचुएशन था सुबह-सुबह। मेरी बहुत फटी पड़ी थी सुबह, बट अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। आई विल एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड। सो दिस इज़ माय पीएनएल, वन सेकंड। यहाँ डाल, ठीक है, तरफ ये आ गया, एक तरफ हमारा आएगा स्टॉक, बिकॉज़ यही 2 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पे मैं ट्रेड्स लेता हूँ। व्हेन आई टॉक अबाउट ट्रेड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑप्शंस ट्रेड। तो यहाँ आ गए हम लोग। ओके, तो ये है सिचुएशन। ये जो सारा बुक्ड है मैं वो बता रहा हूँ, उसके बाद जो अनबुक्ड है वो बताऊँगा। तो बुक्ड है, ये कल तक का है, आज का बुकिंग जो मैंने किया उसमें आया नहीं है। तो दिस इज़ -42,000, 40,000 टैक्सेस एंड चार्जेस थे। ये है इक्विटी का, स्टॉक्स एंड इंडेक्स निफ्टी। ये है प्लस 26,700, दिस इज़ ऑन एम स्टॉक। ये पूरा का पूरा मेरा लॉस का चिट्ठा था। तो कितना हुआ, 42 प्लस 26, 42, 52, 62 और 70 पकड़ो, ठीक है, 70,000 का लॉस था। अ, और प्रॉफिट दिखाता हूँ फिर। ये है कमोडिटी। कमोडिटीज़ ने ही मुझे बचाया है। ये मुझे पहले समझ आना चाहिए था कि यार जब जब मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट नीचे सेंसेक्स निफ्टी नीचे जा रहा है, स्टॉक्स नीचे जा रहा है, पैसे कहाँ डाल रहे हैं लोग? डाल रहे होंगे लोग
बड़े बड़े प्लेयर्स है, वो लोग पैसे अपने घर पे तो नहीं रख रहे होंगे, दे आर इन्वेस्टिंग समवेयर, वेयर इज दैट? देन आई थिंक they figure out that bonds and gold, silver, other safe haven. So और एंड अदर कंट्रीज, अदर मार्केट्स, जैसे यूएस में आप देखोगे तो यूएस में कुछ ऑल टाइम हाई पे चला था, अभी भी वो अप ट्रेंड में ही सब stocks वगैरह, सो मे बी दे री इन्वेस्टेड देयर फंड्स देयर। तो बट कमोडिटीज तो करते ही करते हैं। सॉरी। तो आई शुड हैव कम हियर टू कमोडिटीज। पहले मैं दिखा दूं कि सितंबर के पहले मैंने ट्रेड्स नहीं लिए थे, एक लिया था मैंने, 19,000 का लॉस हुआ था, बट दैट वाज जब मेरा कोर्स वोर्स चल रहा था, तभी किसी के सजेशन पे लिया था, तब पता भी नहीं था कि कॉल बाय, कॉल पुट ऑप्शन, ट्रेड्स वगैरह क्या होता है, नो आइडिया। जस्ट फॉलोड समवन्स इंस्ट्रक्शंस टू दैट ट्रेड एंड मेड अ लॉस, एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि मैं ये कभी नहीं करूँगा, खुद से सीख के करूँगा। देन आई स्टार्टेड माय लर्निंग जर्नी। उस 20,000 के लॉस ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया। उसके बाद लेकिन 50,000 तक का लॉस भी हो गया, पर इट इज़ ओके, यू नो, दैट्स फाइन, क्योंकि उसके बाद जो हुआ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस अभी का स्टोरी। ऑलराइट, सो वी विल कम टू ओके, तो अभी कमोडिटीज़ में आते हैं। कमोडिटीज़ में सेम सितंबर से जैन, राइट। तो देखो यहाँ पर है 71.42 के, ये सब कमोडिटीज़ में से मैंने अर्न किया है इन द लास्ट 1 मंथ, बिकॉज मैं कमोडिटीज़ में ट्रेड ले ही रहा हूँ सिर्फ 1 महीने से, उसके पहले मैं ट्रेड लेता नहीं था। तो कमोडिटीज़ मुझे डर लगता था बहुत, आई नेवर यूज्ड टू टेक ट्रेड्स इन कमोडिटी। तो ये है बुक, तो 65 पकड़ दें चार्जेस वार्जेस निकाल के, तो वो था कुछ 70 नहीं, एक्चुअली 68 था लॉस, और यहाँ पर 65 प्रॉफिट कल तक बुक किया था, और आज का सिचुएशन दिखाता हूँ। बट उसके पहले मुझे आपको, अच्छा, आई आई जस्ट शो दिस टू यू कि मैंने बुक कितना किया है। मैंने बुक किया है आज 3,800 अभी। तो आज एक्चुअली मैं बोलूँ तो बुक करने के हिसाब से टुडे इज़ द डे व्हेन आई गॉट बिकम प्रॉफिटेबल, एंड 29th ऑफ जैन। ठीक है, अभी आई विल शो यू सुबह के जो मैं बता रहा था कि ट्रेड्स के बारे में। पहली बात तो है कि वेदांता अभी भी हम लोग ने विजिट नहीं किया है। अ, वेदांता में चल रहा है करीबन अभी 3,000 का प्रॉफिट, 3,100 का कुछ प्रॉफिट चल रहा है। 5,000 तक पहुंचेगा, एग्जिट मार दूंगा। दूसरा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, देखो ये कल 8% ऊपर गया था, तो मुझे पता था ये नीचे आने वाला है, मेरा एंट्री गलत था यहाँ पर। आई न्यू कि एक रिट्रेसमेंट आएगा 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 और आएगा ही, बट फिर भी मैंने ट्रेड ले लिया। पर कल ही फोमो में भी लिया था इन अ वे, और ये भी सोच के क्या पता आज भी अगर वो पॉसिबिलिटी था, ऐसा नहीं है कि पॉसिबिलिटी नहीं था, पॉसिबिलिटी था कि यहाँ से और ऊपर जाता हो, बट अगर जाता भी तो एक रिट्रेसमेंट आता, तो उसके पहले ही आ गया, विच इज़ फाइन। आई एम गोइंग टू होल्ड दिस, क्योंकि मैंने ये जो ट्रेड लिया है वो मैंने कोई बहुत बड़ा ट्रेड नहीं लिया है, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट 10,000, मैक्सिमम लॉस 12,000, प्लस मेरे पास टाइम है 24 फरवरी तक, तो आई हैव टाइम, तो आई डोंट हैव टू वरी। प्लस 1 फरवरी को रिजल्ट्स बोल रहा हूँ, बजट अनाउंसमेंट होने वाला है, उसमें काफ़ी कुछ डिफेंस के फेवर में आएगा। प्लस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आए हैं, तो ऊपर जाना ही है वो। तीसरा, यहाँ पर आप वॉल्यूम देखोगे तो बड़े बड़े कैंडल्स आए एंड विद गुड वॉल्यूम। ये जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अपना लॉस तो बुक नहीं करेंगे यहाँ पर कहीं, दे आर गोइंग टू एक्यूमुलेट मोर एंड दे विल बुक प्रॉफिट्स, दे विल नॉट बुक लॉसेस। वो लोग बुक करेंगे, करते हैं लॉसेस, लेकिन वो लोग ऐसे लॉस बुक नहीं करेंगे। हाँ, अगर कुछ बहुत बड़ा सीन हो गया तो वो लोग कर देंगे, बट दे विल ऑलवेज ट्राई टू बुक प्रॉफिट्स, बिकॉज दैट इज हाउ दे गिव मनी टू म्यूचुअल फंड्स होल्डर्स लाइक अस रिटेलर्स। हमारे लिए पैसा बनेगा कहाँ से, और खुद के लिए कहाँ से बनेगा? उनको पहले रिजल्ट दिखाना है कि भाई हमारे म्यूचुअल फंड में इतना इतना हमने पैसा बना के दिया है लोगों को, साल का 15%, 20%, 25%, वट एवर इट इज। ठीक है, तो वो सब उन लोग को दिखाना है, तो उसके लिए उन लोगों को यार प्रॉफिट तो बनाना ही पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे होगा? उसमें से भी उनको उनका प्रॉफिट निकालना है, तो दे आर गोइंग टू सेल हायर, इफ नॉट टुडे, इफ नॉट टुमारो, मे बी नेक्स्ट वीक, मे बी इन 2 वीक्स, बट दे विल डू इट। मेरे हिसाब से लॉन्ग बिल्डअप बनाए, ऑप्शन चेन वगैरह और
ओपन इंटरेस्ट, सॉरी ओपन इंटरेस्ट वगैरह सब चेक करूँगा। आई विल सी वेदर इट्स एक्चुअली अ लॉन्ग बिल्डअप और नॉट, विल फिगर दैट आउट। कैसे चेक करना है, इफ यू वांट टू नो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल शो यू हाउ आई डू इट। ओके, so this we are going to hold, Vedanta we are holding, भारत इलेक्ट्रॉनिक इसमें फिलहाल आई थिंक कुछ चल रहा है, 2500 का कुछ लॉस चल रहा है, विच आई एम गोइंग टू होल्ड, आई एम नॉट गोइंग टू वरी। यहाँ पर मैंने मैंने पहले से मेरा लिफ्ट रिस्क डिफाइन करके रखा है कि 10,000 या 10,000 भी नहीं, एक्चुअली 6-8 हज़ार तक का लॉस मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ यहाँ पर, कि यहाँ पर मेरा बायसेस काफ़ी बुलिश है, तो मैं डरूंगा नहीं, आई विल होल्ड। ऐसा लगा कि थोड़ा नीचे गया है तो गया एग्जिट एंड री एंटर, बट आई एम गोइंग टू बी इन द BEL ट्रेड, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी बुलिश। ओके, नेचुरल गैस भी इसमें रिकवरी आया था कल, रिकवरी मतलब 1,000 रुपये तक था प्रॉफिट, 1,000-1,500। आज गैप अप ओपन हुआ, फिर ऊपर गया, अपर सर्किट टच किया, फिर सर्किट खुला तो थोड़ा नीचे आया। अभी हम लोग उस पे है करीबन 2,800 के प्रॉफिट पे बैठे हैं, बुक नहीं किया है, अनबुकड है। उसके बाद आती है बात और एक गोल्ड की, जो गोल्ड मिनी फ्यूचर्स मैंने कल बुक किया था, लेकिन आज फिर से मैंने पोजीशन ओपन किया। गाइस, ओके ओके, एक्शन टाइम, आई शो यू समथिंग। तो पहले दिखा देता हूँ, स्टोरी बताता हूँ बाद में, पहले यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर देंगे हम लोग। ये मैंने सुबह का ट्रेड लिया है, 7,500 इसमें दिख रहा है। रीजन बीइंग, आज 6% ऊपर खुला है। ओके, 6% ऊपर खुला नहीं है, बट 6% तक ऊपर गया था गोल्ड मिनी फ्यूचर्स। तो मैं तेको एनालाइज करूँ तो यहाँ दिखा रहा है कि लॉस दिखा रहा है। एक्चुअली हुआ क्या है इसमें, इसमें स्प्रेड बहुत बड़ा है, बहुत भारी स्प्रेड है। सी, यहाँ तो ठीक है, एक मिनट थोड़ा, तो इम्पोर्टेंट है, पहले बुक कर देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बात करें। ठीक है, तो इसी इसी दिस 4570 4560, ठीक है। यहाँ ओह, ओके ओके ओके, ये थोड़ा चेंजेस हुआ है। गाइस वेट, लेट मी बुक दिस। हम फिर से इसमें ट्रेड लेंगे आज, लेकिन अभी पहले फ़िलहाल थोड़ा सा वेट करते हैं। बुक जितना दिख रहा है अभी उतना बुक कर देते हैं। 154579 सेल करेंगे, 2851 2853 450460 कर देते हैं, और यहाँ पर ये कर देते हैं हम लोग 2753 बुक कर दिया। कितना बुक किया है प्रॉफिट, अपडेट हो जा, 6,000 और बुक किया प्रॉफिट। ओके, तो आज 10,000 के करीबन हमने गोल्ड में प्रॉफिट बुक कर दिया है। मैंने फटाफट से क्यों किया आपको बताता हूँ मैं, मेरी क्यों फटी पड़ी थी इसमें। फिलहाल बुक कर दिया तो मुझे थोड़ी शांति है। ये पता है कहाँ तक चला गया था जो मैंने अभी बुक किया 6,000, इट वेंट डाउन टू -11,000, फट के चार हो गई थी भाई मेरी। सॉरी, इन अप्रोप्रिएट लैंग्वेज फॉर यूट्यूब, बट यू गेट द आइडिया। तो 10,000 यहाँ पर मैंने बुक किया है अभी ओवरऑल। शुरुआत में मैंने 3,800 किया था, जो मैंने कल का ट्रेड कैरी ओवर किया था आज, वो मैंने 3,800 बुक किया था। उसके बाद फिर से ट्रेड लिया था, बिकॉज आज एक्सपायरी है। तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट और लॉस जो था इनिशियल ट्रेड में, वो था 4,600 का मैक्स प्रॉफिट और 11,000 का मैक्स लॉस। और मैंने वो लिया था 1,65,000 के लेवल का, तो मतलब इसके ऊपर रहता अगर तो पूरा प्रॉफिट आता। जब 4,600 तक मैक्सिमम प्रॉफिट था और मुझे उसमें से मिल गया था करीबन 4,000, 3,800, तो फिर मैं और क्यों 800 रुपये के लिए वेट करूँ पूरा दिन, मैंने बुक कर दिया। लेकिन और वो कहीं करीबन यहाँ पर कहीं, हाँ यहाँ पर कहीं बुक कर दिया था मैंने। और फिर मैंने देखा कि यार यूजुअली क्या होता है ना गोल्ड में, ये बड़ा कैंडल आया, ये मोस्टली डोजी जैसा बनता है इन मोस्ट केसेस। प्राइस स्टेबलाइज होता है और फिर यहाँ पर खेलता रहेगा उस लेवल, फिर थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर। लेकिन यहाँ पर आज क्या हुआ, आज पता नहीं, आई हैव टू सी न्यूज़ क्या आया है, क्या हुआ है ऐसा, समथिंग मस्ट हैव हैपेंड बिग। एक तो एक्सयू गोल्ड, मतलब एक्सयू यूएसडी तो ग्लोबली जो है गोल्ड वो बड़ा ही है, बट उसके साथ साथ ही सॉरी, उसके साथ साथ ही एक और चीज़ हुई थी, अ, हुई है आई थिंक, मतलब हुई होगी, आई एम नॉट श्योर क्या हुआ है, बट कुछ हुआ है। यहाँ पर कुछ दिख रहा है, प्रमोशन, वाई आई डोंट नो। मैंने आज सिल्वर बीज भी और खरीदा है,
एनीवे, ऑफ टॉपिक नहीं जाते। तो यहाँ पर मैंने फिर से एंट्री ली, बिकॉज़ मुझे बड़ा ग्रीन कैंडल दिखा, बड़ा वॉल्यूम दिखा, वापस से ग्रीन कैंडल दिखा, वापस से घर, तो आई जस्ट टूक अ ट्रेड। लेकिन हुआ क्या, मैंने जब ट्रेड लिया ना तभी वो अपर सर्किट पे था, गोल्ड 6% पे उसने अपर सर्किट मारा था और वहाँ पर वो स्टेबल हुआ था। मुझे वो रियलाइज़ नहीं हुआ, मैंने वो ध्यान नहीं दिया। मैंने वो ध्यान नहीं दिया कि गोल्ड अपर सर्किट पे है। आई जैसे देखो अभी यहाँ देखो, इफ यू सी नेचुरल गैस, देखो यहाँ पर दिख रहे हैं 2 कैंडल्स एकदम, ये देखो, दिख रही है? ये अपर सर्किट था इसका आज का। वो हिट किया, उसके बाद सर्किट खुला नेक्स्ट लेवल, ठीक है? तो ये हुआ था इसमें भी। और मैंने जब ट्रेड लिया तभी ऑलरेडी उसका पुट का प्राइसेस और मतलब वो थोड़ा पता नहीं, इट वाज़ हायर आई वुड से, ठीक है? मतलब नॉट जस्ट पुट जो मैंने बेचा था बट खरीदा था वो भी। तो जब मैंने वो ट्रेड लिया उसके बाद वो सर्किट ये खुला ऊपर, ये भी अपर सर्किट हिट हुआ, फिर वापस खुला समथिंग समथिंग। तो वो सब जब हुआ तब मुझे लगा कि प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली हुआ लॉस। मतलब हुआ था, मतलब लॉस दिखा था, बिकॉज़ अभी देख रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने जो एलटीपी किधर गया, ये एलटीपी है वेब का 4481, मैंने ये लिया था 5800 पे, और ये तो चलो ठीक है, ये तो 5400, 600, 500, 700 के आस-पास आ गया था। मतलब प्रॉफिटेबल था इसमें। लेकिन यहाँ जो है ना 2755 ये चला गया था 2200, 300 समथिंग। तो ओवरऑल यहाँ पर लॉस दिख रहा था, यहाँ थोड़ा-सा प्रॉफिट था, लेकिन यहाँ बड़ा लॉस था। 11,000 तक लॉस चला गया था। मैं डर गया, बहुत डर गया था। मैंने सोचा यार इतना मेहनत किया मैंने इतने दिनों से, गया सब पानी में। तो ऐसा मैंने सोचा और आई गॉट वेरी स्कैर्ड। तो मैं सुबह-सुबह वीडियो बना भी नहीं पाया क्योंकि मैं मेरा पूरा फ़ोकस इसी में था। बट अभी जाके वो प्राइस, क्योंकि गोल्ड का प्राइस अभी ना प्राइस स्टेबल नहीं था, प्राइस बहुत फ्लक्चुएट हो रहा था, फिर बहुत ज़्यादा भाग रहा था। तो एनीवे, तो उसकी वजह से पुट के जो प्राइसेज़ हैं वो भी एकदम हेवायर थे। उसमें स्प्रेड भी बहुत बड़ा था, मतलब समझो एक है 5,000, समझो एक ऑफ़र है, सॉरी बिड है 5,000 का और ऑफ़र है 5,900 का। भाई बहुत बड़ा डिफरेंस है वो, बहुत बड़ा डिफरेंस है। 50-100 के ऊपर होना नहीं चाहिए, पर बहुत बड़ा था। ड्यू टू व्हिच मुझे पहले दिख रहा था कि इसमें लॉस होगा एंड ऑल दैट, बट फॉर्च्यूनेटली प्राइस स्टेबल हुआ गोल्ड का, तो ये सब भी स्टेबल हो गया एंड आई एंड अप विद अ गुड प्रॉफिट ऑफ एडिशनल 6,000। तो टोटल 10,000 इसमें आज ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है और फिर से मैं गोल्ड में ट्रेड लूँगा। ये भी आपको मैं बताता हूँ, फिर से ही ट्रेड लूँगा, बिकॉज़ गोल्ड में अभी जिस तरह से गोल्ड का प्राइस चल रहा है, अभी भी गोल्ड बुलिश ही है। रिट्रेसमेंट आएगा थोड़ा-सा, बट बुलिश ही है। तो व्हाट आई विल डू इज़, जब थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट आता है, व्हाट अ रिट्रेसमेंट इज़, फॉर दोज़ हू डू नॉट नो, मे बी हू आर वेरी न्यू, जब भी प्राइस ऊपर भागता है तो थोड़ा-सा वो नीचे आता ही है। क्योंकि प्रॉफिट तो बुक करेंगे ना लोग, तब बाय ही करेंगे तो बेचेंगे कब? ठीक है? और अगर बेचेंगे नहीं, प्राइस अगर नीचे नहीं आएगा तो ऊपर के प्राइस पे खरीदेगा कौन? क्यों खरीदेगा कोई? सब लोग वेट करेंगे कि नीचे आए। और इसमें क्या होता है, चेन इफेक्ट होता है, जहाँ तक मैंने देखा है। थोड़ा-सा कंसोलिडेशन आता है तो लोगों को समझ में आता है कि अरे देखो यहाँ पर ना शायद अभी कोई ना कोई तो बेचेगा, बड़ा प्लेयर, क्योंकि प्राइस स्टेबल हो गया है। तो कोई बेचेगा, उसको देख के दूसरा बेचेगा, ऐसा कर करके बहुत लोग बेचते हैं और बड़े-बड़े आपको ऐसे रेड कैंडल्स दिखेंगे, जैसे नेचुरल गैस में दिख रहा है। देन नीचे एक लेवल पे आया, जिस लेवल पे बायर्स ने अपने ऑर्डर्स लगा के रखे हैं, व्हिच इज़ एक्चुअली मोस्टली डन बाय एल्गोरिथम्स, कंप्यूटर्स। तो एल्गोरिथम के हिसाब से एक लेवल पे आया और वहाँ पर हिट हुआ प्राइस, तो फिर से बाइंग शुरू हो जाएगी। फिर किसी ने बाय किया तो फिर कोई और बाय करेगा, फिर सारे पहले बड़े प्लेयर्स बाय करेंगे, फिर सारे रिटेलर्स घुसेंगे, ऐसे करके प्राइस ऊपर जाएगा। बिकॉज़ इट्स नॉट कि कोई ऊपर लेके जा रहा है ज़बरदस्ती से, बट अगर बड़े प्लेयर्स हैं, उनको बड़ा ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट करना है, दे नीड लिक्विडिटी। अगेन अगेन ये एसएमसी मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में आता है। वी कैन डिस्कस मोर अबाउट दिस इफ यू आर इंटरेस्टेड, एंड आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक टू। तो जब वहाँ पर एंट्री लेंगे वो लोग, बड़े प्लेयर्स, जब उनको मतलब एंट्री लेना है, तो एट दैट टाइम उनके ऑर्डर्स बहुत बड़े हैं, लेकिन इतना ज़्यादा ऑर्डर्स उनका एग्ज़ीक्यूट हो ना पाए। क्या होगा अगर उनको करना है तो, इफ दे बाय, इफ दे बाय अ ह्यूज, और इफ दे पुट अ मेक अ ह्यूज ऑर्डर टू बाय, तो प्राइस धपाक से ऊपर जाएगा, जैसे इस केस में आया है। जैसे इस केस में आया था ऊपर, 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 क्यों?
इस लेवल बाय किया, फिर अगला बायर इस लेवल पे था, सेलर अगर अगला सेलर यहाँ था, अगला सेलर यहाँ था, अगला सेलर यहाँ था। तो जब तक उनका पूरा समझो उसको 10 लाख क्वांटिटी बाय करना है, सेल करना है स्टॉक, इस प्राइस पे है 20,000, इस प्राइस पे 30,000, इस प्राइस पे 15,000, इस प्राइस पे 2 लाख, ऐसे कर करके 10 लाख उसका पूरा होता है यहाँ पे, तो वो प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है। तो इसीलिए भी, और जब हाँ, और इसके बाद जब ये ऐसा कोई कैंडल दिखेगा, तो बाकी लोग भी सब स्पेशली रिटेलर्स देखेंगे, अरे बड़ा कैंडल प्राइस तो भाग रहा है, फोमो में आके वो लोग बाय कर रहे हैं, सब बाय करते हैं, फिर थोड़ा और ऊपर चलता है। लेकिन सबको बाद में पहले जो जिन लोगों ने पहले बाय किया था, वो तो बड़े प्लेयर्स हैं, वो लोग अपना लॉस सॉरी प्रॉफिट बुक करते हैं, वो बुक किया तो वापस रेड हो गया, उसके बाद बाकी सब लोग चढ़ते हैं उसके ऊपर, तो फिर से नीचे आता है, फिर स्टेबिलिटी मिलता है, तो वो चलते रहेगा, तो दैट इज रिट्रेसमेंट, वो होता रहता है। तो इस केस में भी, एक गोल में भी होने वाला ही है। ठीक है, थोड़ा बहुत जिस यहाँ पर थोड़ा बहुत भी कंसोलिडेशन हो रहा है, इस पॉसिबल कि नीचे है थोड़ा सा और फिर ऊपर जाए, या फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन लंबा टाइम चल के फिर ऊपर जाए, बट आई विल टेक अनदर ट्रेड बिकॉज गोल्ड इज स्टिल बुलिश। सिमिलरली सिल्वर भी, एनीवे, तो दिस इज द करंट सिचुएशन। अभी हम लोगों ने यहाँ पर नेचुरल गैस में बुक किया नहीं है, मैं तो सोच रहा हूँ कि ये भी बुक कर देता हूँ। थोड़ा वेट भी कर सकता हूँ, थोड़ा सा वेट करते हैं, चलो। नाउ विल गो बैक टू वेदांता और ये देखते हैं क्या चल रहा है। ओके, वेदांता ऊपर ही जा रहा है, गुड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ऑल्सो गुड, और ओवरऑल निफ्टी भी ऊपर आके अभी थोड़ा स्टेबल हुआ है, स्टेबल हुआ है। अ, देखते हैं एंड ऑफ डे हम लोग क्या देखते हैं, व्हाट हैपेंस। इट इज़ पॉसिबल कि ये फिर से नीचे आके थोड़ा सा ऊपर जाए, बट अगेन वो थोड़ा कहना इजी नहीं है, वी विल सी व्हाट हैपेंस। लेकिन मैं आपको स्टेटस दिखा सकता हूँ कि अभी एम स्टॉक पे क्या स्टेटस है करंट ट्रेड्स का ऑन, आई मीन, इफ़ यू गाइस आर वंडरिंग कि मैं क्या करते रहता हूँ यहाँ से वहाँ स्क्रीन, सो आई हैव मल्टीपल स्क्रीन्स। एक ही स्क्रीन में मेरा स्ट्रीमिंग होता है या फिर रिकॉर्डिंग होता है, एंड मेरे ट्रेड्स वगैरह जो चल रहे हैं, फिर जो मैं ट्रैक करता हूँ चीज़ें, वो दूसरे स्क्रीन्स पे है। मतलब इस ट्रेड इस चार्ट पे या इस स्क्रीन में मैं सिर्फ चार्ट्स ट्रैक करता हूँ, बाकी सारा काम मेरा दूसरे स्क्रीन पे होता है। एनीवे, सो दिस इज स्टॉक पे स्टेटस 480 दिखा रहा है फिलहाल, प्लस चल रहा है, बट वेदांता में स्पेसिफिकली अगेन आई ओपन द शीट जो हम लोग हमेशा ओपन करते हैं। ये शीट ओपन कर दिया हमने, यहाँ पर प्राइस क्या है, अ, पहले जाते हैं हम लोग वेदांता पे। टाटा टाटा स्टील, देखो टाटा स्टील अगर मैंने बुक नहीं किया होता ना कल, इसमें इसमें अच्छा मूव आया था, पहले वो एक बार दिखा देता हूँ। पर मैंने बुक किया था क्यों, क्योंकि मुझे यार कल के दिन में प्रॉफिट, आई वांटेड टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन मीन बाय यस्टरडे सेल, इसके लिए मैंने वो ट्रेड ले ली। ट्रेड एग्जिट मार दिया, नहीं मारा होता तो ये देखो टाटा स्टील खुद बना दिया टाटा स्टील ने, तो यहाँ से कितना परसेंट, अच्छा पैसा आता है यार यहाँ पर, 2%, मतलब 2,000, 2-2,500 यहाँ पर आ जाता। ठीक है, बट 2,000 यहाँ पर नहीं आया, लेकिन मैंने गोल्ड में और बाकी इसमें पैसे बना लिए, तो इट्स ओके, वी विल कम बैक टू दिस लेटर, स्टील एंड नॉट दिस टाटा स्टील बट अदर मेटल सेक्टर्स। अभी आपको कौन से सेक्टर्स भी फॉर्म में है, ये भी आपको मैं बता दूँ। अ, तो करंटली मैं एफ-एन-ओ के स्टॉक्स की बात करता हूँ, मतलब सेक्टर्स की। मेटल्स ही सबसे ऊपर है, एंड देन यू हैव एनर्जी। मेटल्स में भी सबसे ऊपर है नेशनल एल्यूमिनियम, 3.5-4% के आसपास। जिंदाल स्टील है 3.5%, एनएमडीसी 3%, वेदांता 2.73, हिंडाल्को 2.5 एंड टाटा स्टील 2। तो मेटल्स में अच्छा मूव आया है और आता ही रहेगा। ठीक है, मेटल्स पे मैं बहुत बुलिश हूँ अभी भी, ये आई थिंक पूरा क्वार्टर चलेगा शायद, या पूरा साल भी चल सकता है, वी नेवर नो, पर ये क्वार्टर तो चलेगा चलेगा। पीएसयू बैंक्स वगैरह भी, उसमें मूवमेंट आएगा, अभी तक आया नहीं है खास, पहले कुछ हफ्तों पहले था, फिर ड्रॉप हुआ प्राइजेस एंड ऑल, लेकिन फिर से उसमें मोमेंटम आएगा, जस्ट वॉच
वॉच आउट फॉर दैट। साथ में एनर्जी वगैरह भी, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं एंड ऑल दैट। हाँ, सब भी आपको कहा कि ऑयल एंड गैस में प्रॉफिट दिख है नॉट, बट एनीवेज अभी फिलहाल आज सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग है सेक्टर मेटल्स और एनर्जी। सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग है ऑटोमोबाइल और निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ऑटोमोबाइल की पिटाई थोड़ी होने वाली थी बिकॉज जिस तरह का भी ट्रेड डील हुआ है यूरोप के साथ, इंडिया में बाहर की कार्स आएंगी एट मच मच चीपर रेट्स। फ्रॉम 110% टैक्स टैरिफ 40% हो गया, और वो 40% से भी क्या कहते हैं ग्रेजुअली प्लान है 10% कर देने का। मतलब जिस प्राइस पे में आप एक इनोवा खरीदते हो या फॉर्च्यूनर खरीदते हो, या फॉर्च्यूनर भी चलो ठीक है थोड़ी महंगी है, बट अगर जिस प्राइस पे आप समझो एक एसयूवी खरीदते हो, उससे थोड़ा और पैसा डालोगे तो आपको लग्जरी कार मिल जाएगी, BMW, ऑडी। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट प्राइस। आई थिंक ऑडी A3 का लास्ट प्राइस शायद था करीबन 35 या 40 लाख ऑन रोड। बी एम डब्ल्यू 3 सीरीज का शायद कुछ था 45 के आसपास है समथिंग। समझो उसका 40% हो गया। 45 नहीं, एक्चुअली 50-55 ही पकड़ दें। बट अगेन आई कुड बी रॉन्ग, ये मेरे मेरे पास जो ये प्राइजेज है पुराने हैं। आई वॉज लुकिंग व्हेन आई वॉज सेटिंग माई ड्रीम्स टू बाय अ BMW फॉर माई सेल्फ। तो क्योंकि मुझे गोल, अगर गोल दिखेगा तो मैं काम उस हिसाब से करूँगा, तो मैंने वो गोल बनाया था। तो आई वॉज लुकिंग एट प्राइजेस वगैरह क्या है। एनीवे सो तभी के प्राइजेस थे कुछ टाइम पहले के, अभी क्या है पता नहीं। तो एनीवे तो वो सब सस्ता होने वाला है, तो अगर वो सब सस्ता होगा तो ऑटो, इंडियन ऑटो कंपनीज की पिटाई होने वाली है थोड़ी, बिकॉज दे हैव नाउ सीरियस कंपटीशन एट अ सीरियस प्राइस। So these companies, Indian companies, they will have to either reduce their prices or add more features, make the cars more uh, buyer friendly, more attractive। तो उनका खर्चा बढ़ने वाला है, या तो उनका रेवेन्यू कम होगा या तो खर्चा बढ़ेगा, दोनों में से एक होने ही वाला है। तो उनके स्टॉक के प्राइसेस कम होंगे, बिकॉज स्टॉक में के प्राइसेस हमेशा फ्यूचर का पर्सपेक्टिव क्या है उसके हिसाब से होता है। तो सबको लग रहा है कि फ्यूचर में इनका प्राइसेस, इन स्टॉक, इन कंपनीज का रेवेन्यू कम होगा। तो people are not so bullish on auto industry right now। ठीक है, एनीवे कमिंग टू आवर करंट ट्रेड। सो ये है वेदांता। पहले वेदांता से शुरू करते हैं। वेदांता का है 23, ठीक है, इसका बराबर ही है 320। हाई करूँगा, हाँ 23, एंड देन यहाँ पर है 3.35, 3.35 और 3.3। ठीक है, 3,500 प्रॉफिट है यहाँ पर चल रहा है। 1,500 और आएगा तो मैं बुक कर दूंगा। टाटा स्टील फिलहाल इग्नोर करते हैं, ऊपर ले लेते हैं बिकॉज हमारा रनिंग ट्रेड है। ठीक है, तो BEL में है जो सेल लेंगे उसमें। हाँ, क्या किया मैंने, ओके सॉरी बैड। ये है 17.7 एंड 10.35। 7.7 सॉरी, हाँ 7.7 और 10.3। कुछ मैंने गड़बड़ किया है, कुछ तो गड़बड़ किया है। सेल लेग का क्या है, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, 17.7। तो यहाँ पर 2600 लॉस चल रहा है। ओवरऑल जो है वो 800 रुपये को प्लस है, यहाँ पर माइनस दिखा रहा है। आई डोंट नो व्हाई, ये शायद वापस थोड़ा प्राइसेस चेंज हुआ है इसीलिए 17.95 हो गया ये कौन से प्राइस पे लास्ट एग्जीक्यूट हुआ था ये दिखा रहा है। तो 17.95 है, इसमें है 0.65। 17.95 ये थोड़ा चेंज, यहाँ भी चेंज है, यहाँ पर है LTV दिखा रहा है 23.15, 16 ऐसा कुछ स्टोरी है। थोड़ा सा फिर भी करेक्ट नहीं है ये। अच्छी, आई थिंक वो चेंज होता रहेगा, बट एनीवे तो करीबन अभी 800-1000 रुपये हम लोग प्लस में है यहाँ पर। और वेदांता 3,500 प्लस में है। BEL करीबन 2500 माइनस है। हम लोग होल्ड करेंगे दोनों।
जब तक दोनों में 5-5 हज़ार नहीं अचीव। ठीक है, देखो अच्छा मैंने एग्जिट नहीं मारा नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस में फिर से एक क्या कहते हैं, बॉटम बन के एक स्विंग लो बन के ऊपर जा रहा है प्राइस। आई विल होल्ड। इसमें भी मेरा 5,000 का टारगेट है। 5,000 रीच हो गया तो आई विल बुक। ये देखो गोल्ड थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है। अभी यूएस मार्केट जब खुलेगा तो पॉसिबल है कि और नीचे आए और फिर रिट्रेसमेंट आके ऊपर जाए। बट लेट्स सी, विल सी वेयर इट गोस। बहुत लंबा वीडियो नहीं करने का है। आई एम सॉरी कि ये थोड़ा लंबा वीडियो है, बट इट इज़ एज आई सेड नॉट जस्ट फॉर यू गाइस। इट इज़ फॉर यू गाइस फॉर श्योर, लेकिन उसके एडिशन में इट इज़ also more of a trading journal for me to see where I came from, what I did, am profitable or not, how much time it took। ये क्योंकि मुझे आगे जाके मुझे शायद याद ना रहेगी। तो मुझे एक्सपीरियंस याद रहेगा, मुझे जर्नी शायद याद ना रहे। हो सकता है कि मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखूँ, बाकी भूल जाऊँ, क्योंकि तब मैं और ट्रेड में बिजी रहूँगा एंड ऑल दैट। बट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ रिमाइंडर फॉर मी एंड फॉर all of you guys too, especially if you are new. It may also help you to understand the ups and downs, in the life of a trader, in the initial life of a trader. um, this is my confession and my experiences that I'm sharing with you guys. I hope someone learns from this, from my mistakes, and I hope to learn a lot from you guys. I like I said previous videos में भी, मैं चाहता हूँ कि हम लोग यार एक ट्रेडिंग कम्युनिटी बनाए, साथ में ट्रेडिंग करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। लेट्स डू दैट। इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड, let me know, put in the comment section, and we'll work around that, कि how we can do that। साथ में ट्रेडिंग करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। Okay, आप लोगों को कुछ अगर पता है तो प्लीज़ शेयर विद मी, एंड will it will help me too। All right, I will keep documenting this journal honestly, all the wins and losses। uh, Maybe I'll come back to you in the evening with another update. For now, this is Tradomaniac off. Please like and subscribe to my channel if you're watching this. I will see you guys again, maybe later in the day today or tomorrow with new updates. Thank you and have a great day ahead.